Hello everyone. Hi. Hi Puneet. Hi Ashutosh. Hope you guys can see me and hear me. Welcome everyone to the episode number 22. I can't imagine I've done so many of them, but well, I must have the numbering. My teammate is pretty good and keeps track of what is being done, what is not being done pretty seriously. So I don't think I would have messed that up. But we have done a lot of these episodes. I can see a couple of familiar faces who have attended a few before. For those of you who have not attended any of my classes before, my name is Ravi Handa. I have been teaching for CAT for close to 15 years now. I started my career with IMS, then I taught for a little while at Time, at Career Launcher, at all the leading CAT coaching institutes. After that, I started my own website with the name handagafunda.com, through which I taught 20,000 plus students online. And recently, I started taking classes on Unacademy as well. Now, as a part of Unacademy, I take lots of paid classes and lots of free classes as well. For those of you who are already enrolled at Unacademy, they would know. But for those of you who are not, let me tell you, there are two kinds of courses which are offered. One is the Plus courses, the other one is the Iconic courses. In the Plus courses, you get live classes which are very similar to this one. This is actually a live class, but you get them in a structured course. That is, you do this, then this, then this. A particular order needs to be followed in those. Over and above that, you have weekly tests which are a part of these courses. There is study material which is given to you, and you have unlimited access. That means any teacher on the platform is available to you. You can take classes from them. Then there is the personalized guidance part if you need that. If you need someone to help you, to mentor you, to give you expert advice about how you can plan your preparation, which colleges you should apply for, and all of that, then you need to go in for the Iconic plan. In the Iconic plan, you will get everything which is a part of this, along with whatever is there as a part of the Plus program as well. If you're targeting CAT 21, then my recommendation would be to go in for the 6-month plan, which is effectively for 6,300. You can use the coupon code HANDA and get a 10% off on the same. On the other hand, if you're targeting CAT 22, then you need to go in for the Plus plan, which is for 18 months for 28,550. Here you can use the coupon code HANDA to get a 10% off, or you can go in for the 12-month plan, which is for 39,500. Once again, post discount, this will come to 36K. So you can use any of these programs, but my recommendation for CAT 21 students, I believe most of you would be targeting CAT 21. That's why you are there in an LRDI class. So if you have any questions about CAT preparation, please ask me. I will be happy to answer those queries. And if not, then I will go ahead and start the discussion. Give me a thumbs up if you want me to start the discussion with the sets that I have. And if you have any queries, please use the chat window. Okay, let's go ahead. So I plan to do 2 questions today. First question was sent to me by Alicia Kohli. It's a very good question. Clarifies a lot of concepts for LR. Various cases need to be considered. And then in the second half of the class, I will like to discuss a question which actually is from CAT 2017 or 18, one of those years. That's the agenda for today's classes. I'd like to discuss these 2 sets and like to wrap it up in around 45-50 minutes. That's my goal. I have to wrap it up in under an hour because I have another class at 6:30. तो बीच में मेरे को चाय सुट्टा के लिए थोड़ा सा ब्रेक तो लगेगा. तो चलिए जी, कहानी हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास की. The year is 2089. Beijing, London, New York, and Paris
are in contention to host the 2096 Olympics. The eventual winner is determined through several rounds of voting by members of the IOC, with each member representing a different city. तो हर सिटी से एक मेंबर आ रहा है. तो बीजिंग का एक होगा, लंदन का एक होगा, न्यूयॉर्क का एक होगा, पेरिस का एक होगा, और बाकी जितनी भी सिटीज हैं जो कि मतलब कॉन्टेस्ट कर रही हैं, सबसे एक आ रहा है. All the 4 cities are also represented in the IOC. In any round of voting, the city receiving the lowest number of votes in that round gets eliminated. Okay? तो जिस भी सिटी को सबसे कम वोट मिलते हैं वो निकल जाती है. The survivor after the last round gets to host the event. अच्छा, तो बेसिकली राउंड 1 में 4 लोग रहेंगे. एक कोई सिटी गायब हो जाएगी जिसको लोएस्ट वोट मिलेंगे. राउंड 2 में 3 रहेंगे, राउंड 3 में 2 लोग रहेंगे, और राउंड 3 का जो विनर होगा वो हमारा ओवरऑल विनर होगा. मेरे को राउंड की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, देखो. तो राउंड 1 में 4 लोग चाहिए, राउंड 2 में 3 लोग चाहिए, राउंड 3 में 2 लोग चाहिए, और इनमें जो जीता वो जीता. ठीक है जी. A member is allowed to cast vote for at most 2 different member cities in all rounds of voting combined. Hence, a member becomes ineligible to cast a vote in a given round if both the cities he voted for in the earlier round are in contention of voting. अच्छा, तो मान लो तुमने राउंड 1 में वोट किया ए को, ए हो गई एलिमिनेट. राउंड 2 में तुमने वोट किया बी को, बी भी हो गई एलिमिनेट. तो इसका यह मतलब है कि तुम इतने बड़े गधे हो कि तुमको पता ही नहीं है कि कौन सी सिटी जीतने वाली है. तुम्हारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तुमको आगे से राउंड 3 में वोट करने दिया ही नहीं जाएगा. So if there is someone who is stupid enough to vote for 2 cities which are ending in last in round 1 and in round 2, he will not be allowed to vote anymore. Okay. A member is also ineligible to cast a vote in a round if the city he she represents is in contention. अच्छा, हाँ, तो मान लो तुम रहते हो न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क जो है वो अभी लिस्ट में है कि हाँ जी न्यूयॉर्क को होस्टिंग का मिल सकता है. तो तुम तो अपनी सिटी को ही वोट करोगे, तो इसलिए तुमको वोट करना अलाउड नहीं है. ओके जी. As long as the member is eligible, he must vote for only one candidate city. तो तुम एक ना एक के लिए तो वोट करोगे ही करोगे. ठीक है. The following table shows the information on cities that receive the maximum number votes. ये मेरे को cities की इन्होंने information दे रखी है. It is also known that, अच्छा, उसके बाद में कुछ conditions हैं. तो मैं सबसे पहले तो ये जो सिटी की इंफॉर्मेशन है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करके लिख लेता हूं कि राउंड 1 में टोटल वोट्स कितने होंगे मुझे पता नहीं. राउंड 2 में टोटल वोट्स हैं 83. राउंड 3 में टोटल वोट्स हैं जो पड़े हैं वो हैं 75. इनएलिजिबल लोग कितने हैं भाई? राउंड 1 में 4 लोग इनएलिजिबल हैं. कौन 4? लंदन, पेरिस, बीजिंग, न्यूयॉर्क वाले. जो लंदन को बिलोंग करता है, पेरिस को बिलोंग करता है, बीजिंग को बिलोंग करता है और न्यूयॉर्क को बिलोंग करता है, ये लोग इनएलिजिबल हैं वोट करने के लिए. Are you guys okay with these values? For people who are not allowed to vote and for people who are allowed to vote? तो अब देखो,
यहां पे 4 लोग इनएलिजिबल हैं, लंदन, पेरिस, बीजिंग और न्यूयॉर्क वाले। यहां पे 3 लोग इनएलिजिबल होंगे और यहां पे 2 लोग इनएलिजिबल होंगे, जो कि 2 सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लस वो गधे, दोज इडियट्स, जिन्होंने पहले 2 राउंड में घटिया सिटीज को वोट किया, जो उन सिटीज को वोट किया जो कि पहले 2 राउंड में एलिमिनेट हो गई। कोई तो होंगे ऐसे जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट होने वाली को वोट किया है, सेकंड राउंड में एलिमिनेट होने वाली को वोट किया, मुझे पता नहीं वो कौन है, बट देयर विल बी दोज इडियट्स। तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 प्लस इडियट्स। इडियट्स कितने हैं ये मुझे नहीं पता, बट इस पे मैं आऊंगा। अब देखो, यानी कि मेरी टोटल, कैन यू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ सिटीज विद जस्ट दिस मच इंफॉर्मेशन? आईओसी के कितने मेंबर हैं? इफ आई आस्क यू, कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन? How many members are there in the IOC? Can you tell me that? Puneet says total number of members is 86. Puneet, कैसे निकाला तुमने 86? क्या लॉजिक है 86 का? You are right, Puneet, but why are you saying that it is 86? By watching round 2, absolutely correct. देखो, राउंड 1 में कितनों ने वोट किया, कितने एलिजिबल हैं मुझे नहीं पता। राउंड 1 में एलिजिबल कितने हैं ये मुझे पता है, बट कितनों ने वोट किया ये मुझे नहीं पता। राउंड 3 में कितनों ने वोट किया ये मुझे पता है, यहां से 75, बट कितने इनएलिजिबल हैं वो मुझे नहीं पता। और राउंड 2 में वोट भी पता है, इनएलिजिबल भी पता है। दैट मीन्स द टोटल number of members is 86. अब अगर total number of members is 86, तो मुझे यह पता पड़ गया कि राउंड 1 में वोट करने वाले हैं 82 लोग, तो टोटल 86, तो 75 प्लस 2 प्लस इडियट्स। कितने हैं ये इडियट्स? 9 है, क्योंकि मेरा टोटल नंबर जो है वो ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, 11 होना चाहिए। माई टोटल शुड बी 86। आर यू गाइस ओके विद दिस? अब बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। राउंड 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले लंदन को, कितने मिले हैं? 30। ओके। और राउंड 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं पेरिस को, जो कि मिले हैं 32। राउंड 3 के बारे में तो मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बट मुझे यह पता है राउंड 1 में न्यूयॉर्क एलिमिनेट हो गया और राउंड 2 में बीजिंग एलिमिनेट हो गया। ऑल्सो इन लोगों को जो वोट्स मिले हैं वो है 12 और 21, एंड इस 12 और इस 21 के अंदर 9 जो हैं वो ये गधे हैं। Are you guys okay with this? इस 21 में से ये 9 गधे होंगे जिन्होंने राउंड 1 में न्यूयॉर्क को दिया है, राउंड 2 में बीजिंग को दिया है, इसीलिए इन 9 इडियट्स को अब वापस वोट करना अलाउड नहीं है। Are you guys okay till here? तो अब मैं आगे चलूं। यहां तक ओके हो तो गिव मी अ थम्स अप। आशुतोष, पुनीत, अंशुक, आई होप एवरीवन इज ओके टिल हियर। चलो अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं और क्या इंफॉर्मेशन है, और कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, ये देख लेते हैं भाई। ये निकल जाएगा ना, 32 पेरिस को मिले,
21 बीजिंग को मिले तो लंदन को कितने मिले? 32 और 21 हुआ 53, टोटल वोट्स हैं 83, तो 30 और वापस से मिले लंदन को यहां पे। आर यू गाइस ओके विद दीज वोट्स? देन व्हाट एल्स कैन आई नो? और तो कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। All those who voted for London and Paris in round 1 continued to vote for the same cities in the subsequent rounds as long as those cities were in contention. अच्छा, तो जिसने भी लंदन को पहले राउंड में 30 वोट किए, उसने ही लंदन को 30 सेकेंड राउंड में भी 30 किए, उसने ही लंदन को थर्ड राउंड में भी 30 किए। इसके अलावा भी इसको कुछ वोट्स मिले होंगे, कितने ये मुझे नहीं पता, बट कम से कम 30 तो मिले ही मिले। पेरिस की भी सेम कहानी है, पेरिस को यहां पे जितने मिले थे उतने ही यहां पे मिले। क्या नंबर है वो, आई डू नॉट नो दैट। आर यू गाइज ओके विद दिस? देन नेक्स्ट कंडीशन, 75% of those who voted for Beijing in round 1 voted for Beijing in round 2 as well. Okay? तो यहां पे बीजिंग को वोट करने वाले जितने लोग थे उसके 3/4 लोगों ने उसको यहां पे वोट किया है, और बीजिंग को है 21 वोट। तो बीजिंग को अगर 21 वोट हैं, उसमें से 9 तो ये गधे हैं, 12 ये जो बाकी लोग हैं, यानी कि यहां पे 16 लोग रहे होंगे। भाई लंदन को जिसने किया है वो तो लंदन को ही वापस करेगा, पेरिस को जिसने किया है वो पेरिस को ही वापस करेगा, न्यूयॉर्क को जिसने किया है उसमें से 9 लोग थे, वो 9 यहां पे आ गए। बीजिंग को जिसने किया है उसमें से 3/4 यानी कि 12 लोग यहां पे आ गए हैं। और ये 12 लोग इन 16 से आए हैं। Are you okay with this number? This 12? अब इस 16 के 4 और लोग हैं जो कि गायब हुए हैं, वो 4 कहां गए मुझे नहीं पता। इस 12 में से भी ये 9 लोग तो यहां पे आ गए, बाकी के 3 लोग कहां गए मुझे नहीं पता, बट इस 16 में से 12 यहां पे आए। Are you guys okay with this? Now this will tell me कि पेरिस में कितने थे। So 30 and 12 is 42, 42 82 में से गया तो बचा 40, 40 में से 16 गया तो बचा 24। तो यहां पे थे 24 लोग, वो 24 यहां पे भी आए और वो 24 यहां पे भी आए। उसके अलावा भी लोग आएंगे, वो मुझे नहीं पता कि कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऑल दैट। आर यू गाइस ओके विद दिस? नाउ तो अब ये 30, 32, 31 ये तो मेरे सारे वोट्स हो गए। मैं इस पेरिस पे फोकस करता हूं। इस 32 का अगर मैं ब्रेकअप एनालाइज करने की कोशिश करूं तो इसमें से 24 तो ये लोग हैं जो कि यहां से आ रहे थे, पेरिस वाले। 4 ये लोग हैं जो कि बीजिंग से आ रहे थे। भाई 16 में से 12 ही गए यहां पे, तो 4 बीजिंग वाले हो गए। न्यूयॉर्क के, भाई लंदन के तो यही 30 के 30 जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के 9 लोग तो यहां पे आ गए, तो न्यूयॉर्क के भी 3 लोग हो गए। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि 24 + 4 + 3 दिस इज 31। एक और आदमी जो है, एक और वोट आया है,
वो एक वोट कहां से आया है? वेयर इज दैट वन एक्स्ट्रा वोट कमिंग फ्रॉम? ये 24 आए, इस 16 में से 4 आए, इस 12 में से 3 आए, ये 24 आए, बट एक तो एक्स्ट्रा आया है, वो एक कहां से आया है? मुझे ये बताओ। अगर तुमने वो एक बता दिया तो आई थिंक काफी सारी कहानी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। वेयर इज दैट वन एक्स्ट्रा वोट कमिंग फ्रॉम? Hi Shrija, Ankush, Akash, people who have just joined us. पुनीत, आशुतोष, तुम लोग बता सकते हो कि वो जो एक एक्स्ट्रा वोट है वो कहां से आ रहा है? Can any of you tell me that? Exactly. पुनीत इज एब्सोल्युटली राइट। भाई एक तो एलिमिनेट हो गया ना। ये जो न्यूयॉर्क वाला बंदा था जो कि पहले एलिजिबल नहीं था वोट करने के लिए क्योंकि उसकी सिटी इन कंटेंशन में थी, नाउ ही हैज बिकम एलिजिबल। तो 4 में से 3 एलिजिबल तो यहां पे चले गए, एक यहां पे आ गया, विच गिव्स मी द टोटल ऑफ 32. This one is coming from the people who were ineligible before. Are you guys okay with this? The composition that I have. Good evening, Isha. मैं 32 का ब्रेकअप अच्छे से निकाल लिया है, 30 का ब्रेकअप है ही, 21 का भी अब मेरे पास में ब्रेकअप आ गया, मेरे पास में सारे ब्रेकअप्स आ गए हैं। खाली राउंड 3 में क्या हो रहा है उसके बारे में मेरे को खबर नहीं है। तो चलो जी राउंड 3 में देखते हैं क्या हो रहा है। Those who voted for New York in round 1 voted either for Beijing or Paris in round 2. We know that क्योंकि लंदन के तो 30-30 कंटिन्यू हो ही रहे हैं। The difference of votes cast for the 2 contending cities in the last round was 1. ओहो, तो अब ये जो टोटल 75 है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इनका गैप 1 हो, यानी कि एक के पास में 38 है और एक के पास में 37 है। 38 वाला कौन है नहीं पता, 37 वाला कौन है नहीं पता, कोई तो है। Guys, are you able to see me and hear me? नहीं, वो अंकुश बोल रहा है कि अंकुश को नहीं सुनाई दे रहा है इसलिए। आदि टेक प्रॉब्लम्स का यही सोल्यूशन है, स्विच इट ऑफ एंड स्टार्ट इट ऑन अगेन। हाँ चलो अगली कंडीशंस देखते हैं। 50% of those who voted for Beijing in round 1 voted for Paris in round 3. अच्छा जी, तो ये जो 16 लोग थे, इन 16 में से 8 लोग इधर आए, ओके, और उससे भी मैं 38 37 पे कैसे पहुंचूंगा? भाई इन 16 में से अगर 8 लोग इधर आए हैं तो बाकी के 8 लोग कहां गए? भाई 16 में से 8 लोग इधर आए हैं तो बाकी के 8 लोग यहां आ गए, बाकी के 8 लोग यहां आ गए, तो ये भाई साहब हो गए 38, यानी कि अब इनका मुझे 37 करना है पेरिस का। Are you okay with this?
भाई 16 में से 50% पेरिस के पास में आए हैं, तो बाकी 50% कहां जाएंगे? बाकी 50% लंदन के पास में जाएंगे, तो लंदन को मिल गए 8। बाकी जो सारे वोट्स हैं, ऑल दी अदर वोट्स विच आर देयर, ऑल अदर वोट्स, अब ये 37 के अंदर कौन कौन से वोट्स आएंगे? ये 37 का अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं तो 24 will be the people who voted for Paris in round 1. 8 are people who voted for Beijing in round 1. Then the 2 people are those who were ineligible. न्यूयॉर्क और बीजिंग वाले जो इनएलिजिबल लोग हो गए थे, तो 2 तो वो हो गए, तो कितना हुआ? 32 and 2 34। 3 और हैं, वो 3 कौन है? 24 पेरिस वाले फ्रॉम राउंड 1, 8 बीजिंग वाले फॉर राउंड 1, 2 इनएलिजिबल वाले। अच्छा हाँ, न्यूयॉर्क के 12 थे जिनमें से 9 एलिमिनेट हो गए। 3 those who voted for New York in round 1, ये वाले 3। And this is my composition of the last 37. Ineligible 3 plus 2। आशुतोष, मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? Are you guys okay with this? मैंने सबका ब्रेकअप बना दिया है, सारी पोजीशंस पे कौन सा कब कहां क्या कैसे आया। प्लीज टेल मी। राउंड 2 का इनएलिजिबल देखो, न्यूयॉर्क का आदमी जो कि पहले इनएलिजिबल था, जो कि अब एलिजिबल हो गया, वो 4 में से 1 यहां पे आ गया। एंड इस 4 में से अब इस 3 में से 1 आएगा, और ये वाला 1, और इस 3 में से 1 आएगा, ये दोनों 1, ये मेरे दोनों इनएलिजिबल वाले हैं। या अगर मैं तुमको थोड़ा बेटर दिखाना चाहूं तो न्यूयॉर्क का आदमी जो एलिमिनेट हो गया वो ये रहा, बीजिंग का आदमी जो एलिमिनेट हो गया वो ये रहा, और ये भाई साहब भी आ जाएंगे। अब ठीक है, एवरीवन ओके टिल हियर? मैंने जो भी डायग्राम बनाया है या वैल्यूज निकाली हैं, सारी की सारी वैल्यूज की कौन से आदमी को नॉट ओनली कितने वोट्स मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं, क्या उसका ब्रेकअप है, कैसे उसका कॉम्पोजिशन हो रहा है। ओके, चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What percentage of members from among those who voted for New York in round 1 voted for Beijing in round 3? न्यूयॉर्क को राउंड 1 में वोट करने वाले कितने लोग हैं? 12। उन 12 में से बेजिंग को वोट करने वाले कितने लोग हैं? 9। बेसिकली जिन लोगों को मैं इडियट्स बोल रहा था वो कितने हैं? 9 है। एज अ परसेंटेज 9 out of 12, 75%। नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर पेरिस इन राउंड 1, आई थिंक एक बार टेबल बन जाती है तब तो सब निकल ही जाता है। पेरिस को 24 वोट्स हैं, कुछ ज्यादा करना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? IOC member from New York must have voted for Paris in round 2. न्यूयॉर्क वाले आदमी ने पेरिस के लिए वोट किया राउंड 2 में, ये बात सच है। बीजिंग वाले ने लंदन के लिए नहीं वोट किया था, पेरिस के लिए ही वोट किया था राउंड 3 में, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। ओनली ए इज करेक्ट। I would say this is a hard set, Puneet. I'll put this in the hard category. इतना ब्रेकअप करना और उसका डिवीजन निकालना, इट्स नॉट सिंपल।
देखो, जहां दिमाग कम लगे और थोड़ी सी कैलकुलेशंस होना, वो बेस्ट रहता है। इसमें दिमाग भी लग रहा है, कैलकुलेशन भी है। ऐसे पेपर में कर पाना मुश्किल होता है, और एक आध भी ऊपर नीचे हुआ और तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, तुमसे सही सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सो आई विल नॉट पुट दिस, डेफिनेटली नॉट पुट दिस इन दी easy category by any chance. What percentage of members from among those who voted for Beijing in round 2? Okay, Beijing in round 2 यानी कि 21 लोग were eligible to vote in round 3. तो 21 में से 9 तो इडियट्स थे, 12 एलिजिबल थे, और इन 12 में से कहां गए ये लोग? इन 12 में से हाउ मेनी वोटेड फॉर लंदन? अच्छा, तो भाई ये जो पेरिस वाले हैं, ये तो पेरिस में ही कंटिन्यू कर, इन 12 की बात हो रही है ना। तो इन 12 में से 8 हैं विच वोटेड फॉर लंदन। भाई लंदन को जो एक्स्ट्रा वोट मिले हैं वो इन्हीं लोगों से ही तो मिले हैं, बीजिंग वालों से ही तो मिले हैं। सो 8 out of 12, 66.66%, ऑप्शन 4। दैट्स इट। यही था हमारा सेट जो कि मुझे अलीशा ने भेजा था, और मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है अलीशा खुद ही क्लास अटेंड करने नहीं आई है। बट आई होप द गुड पार्ट अबाउट दीज स्पेशल क्लासेस इज कि इनकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है, सो दैट मेक्स इट हेल्पफुल। इसमें से किसी भी पार्ट में, कोई भी वैल्यू में, कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट। Okay, I don't see any responses coming in. All good? चलो जी आगे चलते हैं। फिर मैं आपको याद दिला दूं that we are starting multiple batches for CAT 22. आप इनमें से कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड स्पेशली मेरा बैच भी लॉन्च हो ही रहा है। इस फोटो में बहुत शरीफ लग रहा हूं, इसमें मैं पुरानी फोटो होने का यही फायदा है। So there are multiple batches which are starting. You can go ahead and join any of these batches. And when you join, please use the coupon code HANDA, which will give you a 10% discount on the same. इसके अलावा कल फिर शाम को 5 बजे मैं LRDI की क्लास लूंगा, परसों भी लूंगा, परसों के अगले दिन भी लूंगा। 5 दिन मैंने प्लान करके रखा था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। So all 5 days I will be taking these LRDI classes. एक सेट या 2 सेट हम लोग इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स we have started giving 2 full length mock tests and 3 sectional tests. Again, any plan that you enroll for will be applicable on this. My recommendation would be to go in for the 2-month plan, which is for 6,300. और हम लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है। यू कैन टेक दैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन एवरी संडे एट 12 noon. उसको अनलॉक करने के लिए आप हांडा कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एक अजीब टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन। आई होप यू गाइज आर एबल टू see the data and see the slides. मैं इसको एक काम करता हूं, जूम बाद में करता हूं। पहले हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। A large store has only 3 departments: clothing,
produce, and electronics. The following figure shows the percentage of revenue and cost from the three departments for the 3 years 2016, 17 and 18. तो 3 सालों का मेरे को ये डेटा गिवन है. The dotted line represent the percentage levels. अच्छा जी. So, अब मैं थोड़ा सा ये डेटा पे फोकस करने की कोशिश करता हूं. मुझे क्या गिवन है, कैसे मैं इस डेटा को इंटरप्रेट करूं. तो 2016 की अगर मैं बात करता हूं तो अंदर वाला है 10%, बाहर वाला है 50%. तो 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स है 50% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, क्लोथिंग है 20% एंड प्रोड्यूस है 30%. सो 50, 20, 30, 100 हो गया. और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट कितनी है. कॉस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की है 50, 40, 30, क्लोथिंग की भी है 30, इलेक्ट्रॉनिक्स की 30, क्लोथिंग की 30, तो 60 और प्रोड्यूस की कॉस्ट हो गई 40%. सो दैट इज वंस अगेन 100. So that is how revenue and cost are happening. Are you guys okay with this? Revenue and cost, the distribution for every year, how it is happening. आशुतोष मेरे को कोई एक पर्टिकुलर ईयर बोलो और मुझसे पूछो कि सर 2017 में क्लोथिंग का कॉस्ट क्या था इस टाइप से, तो देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर. Give me a department, give me a year and tell me if you want the revenue or the cost of it. तो बेहतर तुम्हें आसानी से समझ में आएगा. 2016 का क्या बताऊं मैं तुम्हें, बोलो. What do you want to know for 2016? Clothing. तो 2016 के अंदर यानी कि हमको ब्लू वाली लाइन देखनी है. मैं कॉस्ट में देखता हूं तो कॉस्ट में ब्लू वाली लाइन है यहां पे, ऊपर से थर्ड वैल्यू, आउटर मोस्ट वैल्यू 50%, 40%, 30%. तो अगर कॉस्टिंग के अंदर मान लो उन्होंने 30 करोड़ खर्चा किया था, तो 30 करोड़ में से 30% यानी कि 9 करोड़ का खर्चा क्लोथिंग में हुआ था. दिस इज खर्चा. 2016 का रेवेन्यू के अंदर क्लोथिंग इज ओनली 20%. मान लो उन्होंने 50 करोड़ कमाई की, 50 करोड़ में से 20% क्लोथिंग की कमाई हुई, तो यानी कि क्लोथिंग में कमाई हुई 10 करोड़ रुपए. तो मेरी कॉस्ट थी 30% ऑफ 30 करोड़ विच इज 9 करोड़. माई रेवेन्यू इज 20% ऑफ 50 करोड़ टोटल विच इज 10 करोड़. 9 करोड़ मैंने खर्चा किया, 10 करोड़ मैंने कमाया, तो मेरा प्रॉफिट है 1 करोड़. ठीक है आशुतोष? ओके, आगे चलते हैं. परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द स्टोर इन 2016 वॉज 100%. तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं 2 पार्ट इमेजिन करता हूं. वन पार्ट इज लेफ्ट में क्या है, रेवेन्यू है, राइट में कॉस्ट है. ओके, कॉस्ट, रेवेन्यू. मेरे 3 साल हैं और 3 मेरे डिपार्टमेंट्स हैं. ओके, so 20
16, 20, 17 and 2018 years. अच्छा, डिपार्टमेंट भी तो आएंगे. Clothing, electronics, produce, year, clothing, electronics, produce. चलो जी, मैं डेटा डालने की कोशिश करता हूं. 16, 17, 18. अरे यार, टोटल भी तो चाहिए होगा. ओके, गड़बड़ कर दी ना. सो ईयर चाहिए, टोटल चाहिए, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोड्यूस, ईयर, टोटल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोड्यूस. So year is 16, 17, 18. Total clothing, electronics, produce 16, 17, 18. Total clothing, electronics, produce. ये वैल्यूज हैं मेरे पास में जो टेबल मुझे फिल करनी है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन, परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द स्टोर इन 2016 वाज 100%. तो अगर मैं 2016 में कॉस्ट अज्यूम करूं 100, तो मेरा रेवेन्यू था 200, बिकॉज ओनली देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट ऑफ 100%. देन द स्टोर्स रेवेन्यू डबल्ड फ्रॉम 2016 टू 2017. तो रेवेन्यू डबल होके यहां पे हो गया 400, एंड इट्स कॉस्ट डबल्ड फ्रॉम 2016 टू 2018. तो कॉस्ट यहां से 100 से हो गई 200. देयर वाज नो प्रॉफिट. अच्छा, आप डिपार्टमेंट पे आ गए. तो अब मैं क्या करूंगा, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फिल दीज वैल्यूज अप. भाई, कॉस्ट में 2016 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? कॉस्ट में 2016 के अंदर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 30%, क्लोथिंग 30% एंड प्रोड्यूस इज 40%. तो प्रोड्यूस को 40 कर दो, बाकी दोनों को 30-30 कर दो जी. प्रोड्यूस को 40 कर दो, और बाकी दोनों को 30-30 कर दो. 2018 में कॉस्ट का क्या हाल चाल है? 2018 में अगर मुझे कॉस्ट देखनी है, देन आई एम लुकिंग एट द ग्रीन लाइन. तो 30 इलेक्ट्रॉनिक्स, 20 क्लोथिंग, प्रोड्यूस इज 50. तो प्रोड्यूस को 50 करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को 30 करना है. प्रोड्यूस को 50% यानी कि 100, इलेक्ट्रॉनिक्स को 30% यानी कि 60, और क्लोथिंग को 20% यानी कि 40. वेरी सिमिलरली इसका ब्रेकअप मुझे देखना होगा 16 और 17 का. तो 2016 के अंदर क्लोथिंग रेवेन्यू का डेटा देखता हूं मैं. रेवेन्यू का 50% इलेक्ट्रॉनिक से आ रहा है,
20% क्लोथिंग से आ रहा है और 30% प्रोड्यूस से आ रहा है. So 50 electronics, 20 clothing. 50 electronics, 20 clothing. So 50 electronics, 20 clothing, and 30% produce. Then the 17 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 17 के अंदर यानी कि ये वाली लाइन 30, 30, 40. So produce is giving me 40% revenue. So produce is giving me 160 and बाकी दोनों 30, 30. तो बाकी दोनों 120, 120. इतने से खुश हो? Give me a thumbs up if you are okay with the value still here. एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रहा है. लेट मी जस्ट. हाँ जी, ये सारी वैल्यू से खुश हो? मैंने अज्यूम किया 100 एज द टोटल ईयर और उसके रिलेटिव में मेरी ये सारी वैल्यू निकल गई. पर अभी भी मुझे 17 का डेटा मेरे पास में नहीं है और 18 का डेटा मेरे पास में नहीं है. वो निकालने की कोशिश करता हूं मैं. 17 के बारे में मेरे पास में क्या इंफॉर्मेशन है? No profit from the electronics department in 2017. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मेरा रेवेन्यू 120 था तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरी कॉस्ट भी 120 रही होगी. अब 2017 की कॉस्ट देखता हूं मैं. 2017 में कॉस्ट में क्या हो रहा है? 2017 में कॉस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट है 40% और बाकी दोनों है 30-30. सो ये जो 40% है that is given to me as 120 and if 40% is given to me as 120, 30% which the others are will be 90-90. Which means my total is 180 and 180. So my total is 300. Are you happy with this value? Not considering loss. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है भाई, there was no profit. Oh, so we will assume that there is no loss as well because हम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट डिफाइन करके दिया हुआ है. प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. लॉस में तो काम करते ही नहीं है लोग. लॉस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट को यानी कि आई विल मेक दिस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एज 0. सो रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट. देन in 2018 the revenue from the clothing department was the same as cost from the produce. तो 2018 में कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूस कितनी है? 100. दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथिंग विच इज 100. अब सेम लॉजिक लगाओ. 2018 में क्लोथिंग का रेवेन्यू कितना है? तो अगर मैं 2018 में यानी कि ग्रीन वाले में क्लोथिंग का रेवेन्यू देखता हूं तो वो है 40%. ओके. इलेक्ट्रॉनिक्स का है 20%. अच्छा, इसका भी है 40. प्रोड्यूस का भी 40, क्लोथिंग का भी 40. सो 40% इज 100, which means produce will also be 100. Electronics is 20%, so electronics will be 50. यही है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी ऑल्सो 50 फॉर 20. गड़बड़ कर दिया कुछ? ओ सॉरी, रेवेन्यू देखना था ना. रेवेन्यू इन 2018 फॉर क्लोथिंग इज 40, प्रोड्यूस इज 40, इलेक्ट्रॉनिक्स इज 20. सब ठीक है जी. तो ये हो गया 50 और ये हो गया फिर 250. Are you guys okay with this?
Getting 250 as the answer? तो बस मेरी अब पूरी टेबल बन गई है, अच्छी खासी रंग बिरंगी सी। अब क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करूंगा, सॉल्व हो ही जाएंगे। मतलब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब कुछ ज्यादा कारीगरी बची नहीं होगी। सो लेट्स चेक व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इन 2018। तो 2018 में परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 2018 में मेरा कॉस्ट है 200, रेवेन्यू है 250, तो मेरा प्रॉफिट है 50 का ऑन अ बेस ऑफ 200, so that is 25%. What is the ratio of the revenue generated from produce in 2017 to 2018? Produce in 2017 to 2018 revenue, ये दो फिगर्स, 160 is to 100, which is 8 is to 5. What percentage of the total profits from the store were from electronics in 2016? 2016 में टोटल मेरा जा रहा है 100 to 200. Cost, revenue, which means profit is 100. And for electronics, what is the same data? For electronics, the same data is 30 to 100. 30 is cost, 100 is revenue, so profit is 70. 70 out of 100, my profit is 70%. Finally, what is the approximate difference in profit percentages of the store in 2017 and 2018? तो 2017 और 2018 की प्रॉफिट परसेंटेजेस में कितना फर्क है? तो 2017 के अंदर जा रहा है 300 से 400, so profit is 100 on a base of 300, which is 33.33. In 2018, it is going from 200 to 250. So my profit is 50 and this is a profit of 25%. तो gap कितना हो गया? 33 minus this comes out as 8.33% or option 4. Are you guys okay with these values? Basically टेबल एक बार बन जाती है तो बाकी सब उससे निकल ही जाता है. Okay, good to see that. तो चलो दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही. I hope you guys would have liked this class. Please provide positive feedback at the end. कुछ भी अगर तुमको डाउट है, then you can send me an email on hkfdoubt@gmail.com. I will pick it up in an upcoming class. And I request you guys to please provide positive feedback, especially the enrolled students like Puneet. एक दो लाइन वगैरह लिख देना so that I can continue taking these LRDI classes. These LRDI classes, I have planned 5 classes this week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at 5 PM. मैं यही सेम पूरा अपना सीरीज नेक्स्ट वीक भी रिपीट करना चाहूंगा, but for that to actually happen, the feedback should be good, the feedback should be positive. So I hope you guys will oblige me on that. And on that note, I'll end this class. See you guys tomorrow at the same time. Bye Ashutosh, bye Puneet, bye everyone, bye guys.